मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन से। आज हम इधर मिले हैं ये बताने के लिए कि डायबिटीज़ नो डाउट इज़ एन एपिडेमिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट that we all should know is uncontrolled diabetes is yet another epidemic that has hit our nation. So there is something known as double epidemic that we are facing. One, diabetes and uncontrolled diabetes. These are double epidemics that we are facing. अगर हम किसी मरीज को पूछते हैं, किसी को भी पूछते हैं कि डायबिटीज होता क्या है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट होता क्या है, डायबिटीज लोग यही समझते हैं कि शुगर बहुत हो रहा है या शुगर कम हो रहा है, ये चीज समझते हैं। और बहुत लोग यही समझते हैं कि द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज जो होता है इट इज कंट्रोल ऑफ हाई शुगर लेवल और समथिंग नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया, एट द सेम टाइम प्रिवेंटिंग हाइपोग्लाइसीमिया। तो इन रियलिटी ये सिर्फ यही ट्रीटमेंट नहीं होता है। बहुत मरीज यही समझते हैं कि हम दवाई ले रहे हैं ताकि डायबिटीज का मतलब ये है कि बहुत शुगर हो रहा है, शुगर को कंट्रोल करना है और शुगर डाउन ना हो ऐसे measures लेना है। Answer, this is no. The answer for the treatment, the focus or the primary focus for the treatment of diabetes should be to prevent complications. Now the reason being uncontrolled diabetes has hit our nation as an yet another epidemic. Now Indian population is facing two different epidemics, and that is diabetes and uncontrolled diabetes. We all of us know what is type 1 diabetes. 1000 years back हमें मालूम है, 1000 years से हमें मालूम है कि डायबिटीज है करके, ओके। एंड एक सेंचुरी पहले हमें मालूम हो गया कि डायबिटीज का रीजन क्या है। 1922 नवंबर 14 बेंटिंग बेस्ट ने बता दिया हम लोगों को कि बीटा सेल जो सीक्रेट करते हैं इंसुलिन, और इसकी डेफिशिएंसी ही क्रिएट करती है टाइप 1 डायबिटीज। Secondly, then what is type 2 diabetes? The fact is the exact reason what is the cause of type 2 diabetes is not well known. Insulin resistance, environmental factors, fat distribution, hormonal imbalance and polygenic etiology. ये सारे multiple factors हो सकते हैं और है भी, because all of them work in combination. Most important, why should we really get worried about uncontrolled diabetes? Because a persistent uncontrolled or hyperglycemia causes organ damage. We all are living because of the organs, और organ damage अगर हो जाता है then you have to take the supportive treatment, like kidney fail हो गया because of diabetes तो transplant की जरूरत पड़ सकती है, dialysis की जरूरत पड़ सकती है। हार्ट अटैक आ सकता है क्योंकि वैस्कुलोपैथी भी एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का, तो उससे हार्ट अटैक आ सकता है। स्ट्रोक जो पैरालिसिस होता है वो आ सकता है। एम्पुटेशन ऑफ द लिम्ब वो हो सकता है, बिकॉज द ब्लड सप्लाईज गोइंग टू द लिम्ब्स आर गेटिंग ब्लॉक्ड एंड इवेंचुअली पूरा वेसल ही ब्लॉक हो जाता है, तो दे बिकम इट्स इम्पॉसिबल फॉर इंटरवेंशन एंड गैंग्रीन विल रिजल्ट इन एम्पुटेशन अल्टीमेटली। रेटिनोपैथी, blindness, these are all the causes. So the basic important things right now when we are dealing with patients with uncontrolled diabetes, yet another epidemic, is focus our treatment on prevention or make sure that they get postponed to such a duration that the person can lead a happy, healthier, quality and long living life. In India, many research articles which have been published in the Google or the PubMed describe Indian diabetics as thin fat Indians. Thin fat Indians का मतलब ये होता है कि they look thin but they have huge deposition of or significant deposition of fat in the viscera, that is abdominal obesity. और ये जो fat accumulated है, it is also we can come to, that is why the recent publication by Lancet in January 2025, it very clearly said that BMI should not be the only number. BMI can actually be swaying in a wrong direction. Visceral adiposity is one of the important factor that can cause problem. So another word what is known as metabolic syndrome. Metabolic syndrome or syndrome X, it is nothing but visceral adiposity, hyperdiabetes, hypertension and lipid abnormalities or dyslipidemia. This is known as metabolic syndrome X or metabolic syndrome.
And what is syndrome Z? It is when the syndrome X is added with sleep abnormalities, OSA, obstructive sleep apnea. This is known as syndrome Z. And OSA जो स्नोरिंग करते हैं और ब्रीदिंग में डिफिकल्ट होता रहता है, these can cause acute abnormalities, problems, death, mortality, sudden death के लिए कॉज होता है OSA. एंड जो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, इसका डेफिनेशन क्या है वो भी मैं बता दूंगा आपको. व्हाट इज अनकंट्रोल्ड, मतलब बेसिकली हमें ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एपिडेमिक प्रोपोर्शन में अब इंडिया फेस कर रहा है. इसके अब हम इसको, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग पॉपुलेशन है जो अभी डायबिटिक है, एंड अगर एक बार डायबिटीज हो जाता है एंड डिस्पाइट टेकिंग मोर देन 3 मेडिसिन उनका शुगर लेवल्स कम नहीं होता है. HbA1c वर्ल्ड वाइड क्राइटेरिया 7, हमारा 7.5 क्राइटेरिया है HbA1c की. डिस्पाइट टेकिंग 3 और मोर देन 3 मेडिसिन, इफ द HbA1c परसिस्ट मोर देन 7.5 फॉर एटलीस्ट 2 years ऑफ टेकिंग मेडिसिन. लाइफस्टाइल डाइट तो पहले ही हो गया, उसके बाद मेडिसिन शुरू हो गया, और मेडिसिन के बाद भी मोर देन और इक्वल टू 3 मेडिसिन ले रहे हैं, और HbA1c मोर देन 7.5 परसिस्टेंट है. HbA1c इज इनवर्सली रिलेटेड टू अकरेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन. अगर बहुत ज्यादा HbA1c है, शॉर्टर ड्यूरेशन में इनके ऑर्गन फेल होंगे, और ऑर्गन फेल हो रहे इसका मतलब यू नो द कॉन्सिक्वेंस, मॉर्टेलिटी, डेथ इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस दैट इज अप्रोचिंग. ओके, तो HbA1c अगर 12-13 है किसी का, परसिस्टेंटली हाई है, मेडिसिन तो ले ही रहे हैं. There is no person in India I see who is not taking medicine for diabetes. लेकिन उसके बावजूद भी अगर HbA1c 12-13 है, तो उनका ऑर्गन फेल्यूर होने का चांसेस विद इन 6 years है. HbA1c 8 है, we can easily remember, if the HbA1c is 8 years में ऑर्गन फेल होने की चांस. अगर HbA1c 6.5 के नीचे है, 6 है, 15 साल तक ऑर्गन फेल होने की चांस. So the aim is to maintain HbA1c to normal. So what is normal? The world standard says more than 2 medicines on and HbA1c more than 7. Duration वो define नहीं करते. Okay, हम duration भी define करते हैं. At least 2 years they will have taken the diet, lifestyle measures, exercise, medicines at least 3, with and without insulin. अब ये सब हम क्यों सोच रहे हैं? The day the patient is diagnosed diabetes, उनकी insulin secretion या बीटा सेल्स 50% रिड्यूस हो जाते हैं, और द डे द पेशेंट कम्स फॉर टेकिंग इंसुलिन, उनके जो बीटा सेल्स है 10% बचते. तो ये सवाल आ सकता है कि जब बीटा सेल्स इतने कम हो गए हैं, 50% बता रहे हो, 10% बता रहे हो, तो सर्जरी का बेनिफिट कैसे आ सकता है? अल्टीमेटली सेल्स ही तो देना है इंसुलिन, ऊपर से तो आप इंसुलिन दे ही नहीं रहे हो. आंसर इज वी आर इन्वेस्टिंग इन दोज सेल्स, एंड एंटी इनक्रेटिन फैक्टर्स को हम डिलीट कर रहे हैं और इनक्रेटिन फैक्टर्स को हम दे रहे हैं. दैट इज इन द फिजियोलॉजिकल डोज. क्योंकि अभी भी आप अगर देखोगे, आपको कितने सारे फिल्म स्टार्स है, वो सारे आपको बता रहे मुंजारो मेडिसिन, जो वेट लॉस मेडिसिन भी है, बेसिकली दे वर एंटी डायबिटिक मेडिसिन इनिशियली टू बिगिन विद, बट उनका एक साइड इफेक्ट देखा गया कि वेट लॉस हो सकता है, तो सारे लोग वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करने लगे. डायबिटीज तो वैसे ही ठीक होगा. अल्टीमेटली दैट इज अनहेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट और ट्रीटिंग डायबिटीज. क्यों? नाउ क्योंकि ये जो मेडिसिन है 3 जगह काम करते हैं, ब्रेन, स्टमक, पैनक्रियास. ओके, लेट्स कम टू द स्टमक. ओके, स्टमक में क्या करते हैं? अगर हमें ब्रेकफास्ट ले लिया, 2 पराठा ले लिया, खा लिया, दैट्स एन इंडियन फूड कॉमनली. 2 पराठा खा लिया, ये पराठा नीचे ही नहीं उतरेगा डिओडिनम के पास फॉर एटलीस्ट 8 hours. तो इट इज लाइक एन समथिंग इज, देखिए आंख का भी प्रॉब्लम है, दीज गो हैंड इन हैंड. रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, लेग का सेंसेशन, ऑल दीज 3 आर लाइक सेम, क्योंकि सारे ड्यूरेशन डिपेंडेंट है. सारे एंड परसिस्टेंट हाई शुगर लेवल इज ऑल्सो टॉक्सिसिटी. गौतम बुद्ध ने क्या बताया था? आप कुछ भी इन एक्सेस लेते हो या बॉडी में कुछ भी एक्सेस होता है, वो पॉइजन है. बताया था ना, सेम चीज. सर, ये सर्जरी का पूरा टाइम फ्रेम कितना है, मतलब कितना? मैम, इट डिपेंड्स ऑन सर्जन टू सर्जन. इन एम्स, इफ यू आस्क मी माय टाइमिंग, आई टेल यू इट टेक्स 2 hours. At the end of 2nd hour, the patient is shifted back to the recovery room, and from then
डिपेंडिंग ऑन दी प्रोफाइल, लाइक शी इज डिपेंडेंट ऑन वेंटिलेटर एंड ऑल, देन वो वार्ड में शिफ्ट होकर वेंटिलेटर मतलब सीपैप देने की जरूरत पड़ती है. दैट सीपैप दोबारा नहीं होगा, क्या गारंटी है? एक्चुअली क्या है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दोबारा क्यों होगा? फर्स्ट आंसर हो सकता है 3 रीजन. सर्जरी हमने ऐसे किया कि जो लिम्ब बाईपास करना था छोटा था, एक्चुअली लिम्ब जो जरूरत था वो कम हो गया. स्टमक का ट्यूब जो था छोटा रखना था, बहुत बड़ा रख दिया. इंडियंस स्पेशली पंजाब से भी कुछ पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं सर आप ऐसा स्टमक का ट्यूब रखिए ताकि मैं बटर चिकन दूँ. ऐसे भी बोलते हैं. आई नो दे कैन टेक ओनली आफ्टर 2 months एंड ऑल. नॉट दैट एवरीथिंग दे कैन इट, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट दे कैन स्टिल टेस्ट समथिंग, है ना. तो 3 चीजें. तो वी शुड फाइंड आउट वाज द सर्जरी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हैव रिकर्ड, हैज इंटेस्टाइन गॉन इन अडॉप्टेशन. जनरली 8 साल तक इंटेस्टाइन अडॉप्टेशन शुरू होता है 1 साल के बाद. जैसे वेरी रिसेंटली एन एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट हु अंडरवेंट अगेन डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, 1 साल का बच्चा था उनका, एंड शी अप्रोच्ड मी, प्लीज ट्रीट माय डायबिटीज, ओके, बिकॉज आई डोंट वांट दिस डायबिटीज एंड द हाइपरटेंशन फॉर माय नेक्स्ट चाइल्ड. दूसरा बच्चा होने के पहले मुझे ये नहीं चाहिए. तो हमने उनको एक प्रॉमिस पूछा, क्या आप 1 साल, एटलीस्ट 1 साल या 1.5 साल तक रोक सकते हो अपने आप को, दूसरा बच्चा नहीं करना? उन्होंने बोला मैं 5 साल तक भी रोकने को रेडी. अनफॉर्चुनेटली जिस दिन अक्टूबर फर्स्ट वीक में उनका सर्जरी था एंड September 30th शी वॉज प्रेग्नेंट. And anyway, she said, I am going to abort. She underwent abortion. She got admitted for the December, the last, let me not tell you because उसमें details रहते हैं. So she underwent on the same date. She is non-diabetic. She is happily, she went out. Abort होने के बाद. Now for next 1 year, the intestine will go slowly adaptation for nutrition. Now the question, will my diabetes return? देखो ऐसा चीज है ना कि आई टेल यू, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन्होंने डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते, तो वापस आ सकता है. एनीथिंग कैन रिटर्न. लेकिन दूसरा चीज देखो ना, 95% ऑफ माई पेशेंट्स से वी आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू दैट लाइफस्टाइल अगेन. यू हैव गिवन मी रीबर्थ. मेरा दूसरा जन्म आया है ऐसा लग रहा है. आई एम बैक 10 to 15 years बैक में हूँ मैं. I am not right now, I was 65, but that's a chronology age. My physiologically has gone back to 10 to 15 years minus हुआ है. किडनी का फिल्टर प्रॉब्लम चालू हुआ था, डॉक्टर साहब तो बताए थे भाई किडनी फेल हो रहा है ना. नो दैट किडनी प्रॉब्लम इज सॉल्व. नो, डू यू थिंक दैट 95% पीपल थिंक दैट दे विल ईट अगेन एंड गो टू दैट? आंसर इज डेफिनेटली नो. मानता हूँ कि देर आर लेस देन 5% ऑफ पेशेंट्स हु गेट बैक देयर weight also and diabetes also, but please focus on that 95%. इंडिया में या कहीं भी बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है कि 35% मेरे पेशेंट सर्जरी करने के बाद वो सब आमने सामने आके नहीं बोलते हैं कि बाबा सर्जरी के कारण से मेरा शुगर ठीक हो गया, सर्जरी के कारण से मेरा वेट लॉस हो गया, ठीक हो गया. नहीं बोलते. वो बोलते हैं मैं एक्सरसाइज हार्डवर्क करने से मैं ठीक हो गया हूँ. वेरी सरप्राइजिंग. लेट मी नॉट टेल यू, वन ऑफ माई पेशेंट who is in higher official in police, he keeps putting in the WhatsApp, he tells he has lost weight by exercise, not by surgery. Very surprising. No names to be taken. Okay. सर एक बात बताएं कि there is a hospital, I think Kullar's hospital, they have done surgeries on less than 27 BMI, 21 to 27. It is already published. That is why I am using this word. And they have already published this. Now we correct. अगर कोई स्पोर्ट्समैन जिसको डायबिटीज है, अगर आपकी पेट का साइज छोटा, 2 हफ्ते पहले सर्जरी किया. ही इज अ जिम ट्रेनर एंड देखो उनको फैट से प्रॉब्लम है, प्रोटीन से तो नहीं है. सो वी आर रिड्यूसिंग द स्टमक साइज एंड अटैचिंग टू द इंटेस्टाइन. ही कंटिन्यूज टू टेक प्रोटीन एटलीस्ट 60 to 120 grams per day, 1.5 to 2 grams per day, per kg per day. That is, and he takes it. यानी डाइट सेम रहती है या मतलब नहीं, डाइट फॉर फर्स्ट 6 weeks it is like liquid and purine diet. After that he will start gradually normalizing diet. But इसका मतलब ये नहीं कि मैं 4 रोटी खाता तो अभी तुरंत 4 रोटी खाऊंगा ना, वो नहीं होता क्योंकि कैपेसिटी नहीं है. दे हैव फुलनेस, ओके, वीकनेस नहीं है क्योंकि दे आर टेकिंग प्रोटीन. साइड से प्रोटीन